नमस्कार। नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबका सपना होता है कि अपना एक घर बनाना, चाहे हम फर्स्ट होम ले रहे हैं, चाहे हम सेकंड होम या अदर होम्स ले रहे हैं, उसमें से मेन जो ज़रूरत होती है घर खरीदने के लिए पैसा, फाइनेंस। तो उस फाइनेंस की कंप्लीशन को पूरा करने के लिए हमें बैंक्स चाहिए होते हैं, और बैंक से पहले हमें खुद लोग घबराते हैं कि बैंक जाएंगे, पेपर वर्क होगा। उन सारी चीज़ों के सोल्यूशन के लिए हमारे बीच जो होते हैं बैंक और क्लाइंट के बीच एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज का नाम है मॉर्गेज ब्रोकर। तो हमारे पास उस ब्रिज मॉर्गेज ब्रोकर जो कि अर्चना पटेल जी हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी। थैंक यू। कैसे हैं आप आज? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस शो एंड स्पेयरिंग सम टाइम मुझे सुनने के लिए, एंड आई होप आई ऐड वैल्यू टू योर टाइम। तो yes, I'm happy to assist you. We do appreciate that. On behalf of everyone, I do appreciate and thankful to you. आप आए हैं हमें और कुछ आज बहुत सी मॉर्गेज के बारे में बातें करेंगे। पहले तो अर्चना जी मैं जानना चाहता हूँ, who is mortgage broker? Mortgage broker, that's a good question to start with. जी। Mortgage broker is basically आप ऐसा मान सकते हैं कि we are the bridge. We are the connector who connect you with the right institution. Either it could be a bank or a monoline institution जहाँ पे आपकी स्टोरी को फिट होना है, जहाँ पे we get you the best in your interest. So that's what our job is. तो आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दे दी मॉर्गेज ब्रोकर की। तो आपका जो मॉर्गेज ब्रोकरेज में इंटरेस्ट कैसे हुआ? आर यू फाइनेंस बैकग्राउंड या आपको कुछ लगा कुछ और डिफरेंट करना चाहिए, तो व्हाई नॉट अ मॉर्गेज ब्रोकर? बिकॉज एवरीवन इज नॉट easy cup of tea for everyone to become a mortgage broker. Right. Okay. This is, I think, a challenging one. So I've been a healthcare professional for as my primary education. I'm a master's in medical technology. I've been working for Foothills, and before that in Saskatchewan. Now, becoming a broker, before that, I was in hospital. I have seen that fine line between life and death. What I've found out is if we have best way to live our life, then why everyone has to go through with a lot of struggle and stress and everything. Now, if we talk about stress, the major stress is, of course, kahin na kahin finance, right? So that's where, and also I was looking to enhance my skill set where I feel that end of the day that I'm accomplished, I've done something, and I've brought difference in someone's life, and that's how I was exploring some industries, and amongst them I've selected to be a broker. I definitely wanted to see everyone lives a healthy life. The definition of healthy life is a health and wealth, and together combinedly we see a healthy happy life as a family life. वेरी वेल। मतलब कहते हैं कि पहले भी सर्विस इंडस्ट्री में थे, पब्लिक सर्विस में, अब वो कहते हैं मेंटल पब्लिक इंडस्ट्री में आप आ गए हैं। पहले तो फिजिकली हेल्थ आप ठीक करते थे लोगों की, अब मेंटली जो होता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तो फाइनेंस से होता है। एंड आई थिंक फाइनेंस इज अ फर्स्ट थिंग इन द लाइफ। अगर फाइनेंस ठीक है तो सब कुछ लाइफ में ठीक है। सब कुछ ठीक है, yes. In a way, that's very true. One is visibly we can see, which is the health. Once we see it start deteriorating, then we see that it's the impact. Yeah. But that impact has been coming from somewhere, and that one major factor is finance. When finances are in line, we see a huge difference, and I have seen a huge difference. So yes, that's something that's where I'm very confident about how finances are well in line and how it impact in overall your growth and your health. यहाँ पे हम एक बात करना चाहेंगे, बहुत अच्छा आपने बात की है कि बात करते हैं हम हेल्थ की। हेल्थ को ठीक करने के लिए अपनी फिटनेस, डाइट सब कुछ ठीक रखना पड़ता है। अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं, सपोज आई एम द पर्सन हु हैज़ टू बाय द हाउस, तो मैंने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे ठीक रखना है कि मुझे वो घर, जो मेरे सपनों का घर है, जो मैं घर खरीदना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे उसकी फाइनेंसिंग या
बैंक मॉर्गेज कैसे मिल सकती है? सो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट्स फॉर दैट? Right. Okay. So here I'd like to mention one thing. Start where you stand. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि सपनों का घर it has its depth in it. कि जो हम जहाँ से हमारी शुरुआत होती है ना, that's not हमारा सपनों का घर, right? 90% of the time this is what I see कि यार मुझे तो ऐसा चाहिए, Correct. But वो वैसा चाहिए, वहाँ पे पहुँचने के लिए we need to start from somewhere. So I always suggest my clients right off the bat, start from where you stand. Okay. वहीं से शुरुआत होनी है. Whether you qualify for this X amount of value, just go and secure that. ओके, मैं स्मॉल से स्टार्ट करके बिग की तरफ Yes. बढ़ सकते हैं. Yes, डोंट थिंक कि exactly. मैंने आज 5000 स्क्वायर Don't फीट wait. लेना है. Yes. जस्ट सी अगर आप कॉन्डो में आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो स्टार्ट विद दैट स्टार. Start from there. Yes. Okay. Of course, there are additional factors that involves, and that's where we add value. We play crucial role in their helping them to make their decisions. कि क्या सही है और क्या जो चीज वेट कर सकती है. करेक्ट. So what things that you should wait? Become and more better how stuff. To, yes, Yeah. yeah. How to get there? If you are not there yet, how to get there? डोंट डिसहार्ट, वेट. Yes, don't be so hard on you. Yes, exactly. तो अर्चना, जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे घर खरीदना है किसी को, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? मींस अगर मैंने सपोज घर खरीदना है तो उसके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए तो कि मैं क्वालिफाई हो सकूं, या अपने जो भी अमाउंट का घर है उसके लिए कैसे मैं पहुंच सकूं, तो बेसिक चीज़ क्या चाहिए होता है? Right. So let's start with the word pre-qualification. Now, जो भी बंदा है कनाडा में या फिर जो नए आ रहे हैं कनाडा में, one dream is they wanted to have their own home, right? That Correct. they call it home. या शुरुआत करो प्री क्वालिफिकेशन से कि जब भी लेट्स से कि let's talk about the journey a little bit. Maybe that will help Yeah. to understand. When we move to Canada, the first thing we start looking for is to work, so Yes. that we can survive, we manage, we pay our यस, bills, right? यस. कहीं ना कहीं हमारी जॉब सिक्योर हो जाती है, एक लाइफ शुरू हो जाती है. इन द मीन टाइम मेक श्योर फोकस ऑन योर क्रेडिट. ठीक है, क्रेडिट इज it plays very important role. It's a one pillar of that mortgage approval when time comes. But उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वो beginning से ही हो जाती है. Now for credit, I have few things to add. Your addresses, the location where you lived, make sure always update your address with your bank, because that gets reported in the bureau. Sometimes when we look at the credit bureau, it get mixed up with when we have in our community we do have common name, and because of that sometimes it get mixed up. So that's one crucial piece. Always make sure update your address as soon as you are changing your locations, because yes, again in a journey of a new immigrant, it's a very common that they move, they change places, right? So that's one thing. The second thing, sign up for credit that you for sure you know that you can be able to manage that. ठीक है. Third thing, when you are signing up for credit, let's say कि X बैंक से मैंने credit card issue किया, ठीक है, और उसी बैंक में शायद मेरी paycheck भी जानी है, right? That's one again basic thing that we all do. Now use only up to 30 to 35% of that credit. If you require to use more, then sign up for another card, but don't exhaust your credit. Let's say कि ये वो वाली बात हो गई जैसे I used to laugh in the beginning when I got to know this कि वो प्लेट भरी है पूरे लड्डू की, बट खाना नहीं है. खाना उसमें उतना सिर्फ ही उतना ही है. खाना है, हाँ. बाकी रहे भरी रखे हो. बाकी भरी रखो. Yes. जी, जी. So something like that. So always make sure, try not to maximize usage on your credit. यहाँ मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा अर्चना, जैसे आपने बोला कि 30% ऑफ योर क्रेडिट कार्ड यू शुड यूज. सपोज मुझे क्रेडिट कार्ड बना, उसकी लिमिट $1000 है, सो आई शुड यूज ओनली $300 फॉर दैट कार्ड एंड 700 मुझे लेफ्ट ओवर रखना है. Ideally, that's what the Equifax suggest us. Maximum is up to 40,
but try not to use. So you can above make a that. multiple cards if you need more things to work on it. जैसे मेरे पास 3 कार्ड हो गए, $1000 की, तीनों की 3000 का मेरा लिमिट है, तो टोटल $1200 मैं कलेक्टिवली तीनों कार्ड से यूज कर Yes, सकता हूँ. yes. That And work that's- like that. Yes, that's the way how you can manage your credit above that 800. So that makes your credit score. Yes, up. Yes, it Okay. always stays because see that's the way what they are trying to gauge here. वो समझना ये चाहते हैं कि you have your credit but how effectively you are using your credit. तो अगर हम let's say कि मेरे पास वो 1000 की लिमिट है and I'm using almost 900, almost like 950, then the way how it looks is कि I'm using it to I'm maximizing it. Okay. मेनली सो हमें मैक्सिमाइज नहीं करना है. फाइनेंस को अपने हिसाब से मूव करके रखना है, सो दैट कि उसी फाइनेंस की हिस्ट्री ने आपको आगे आपका क्वालिफिकेशन देनी है. आगे हाँ आप हमें आगे बढ़ाना है. जी, सो दैट्स द लिटिल बिट ऑफ अबाउट क्रेडिट पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज आपकी पेरोल जो है, आप कहाँ पे जॉब करते हो, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं मायने रखती है. जी. तो लेट्स से कि you have started with one employer, try to stick with that employer. If your intention is to secure house sooner, also here there is a little bit of gray area. Let's say कि कोई बंदा आके कहेगा कि अभी मेरे पास गुड अपॉर्चुनिटी है, जैसे मेरे केस में हुआ था. I was a temporary employee for healthcare. Then I was offered a full-time position, but it was in different department. Okay. So these are the things where you need a broker with you कि जहाँ पे broker is just a phone call away. Yes, yes. You talk to them, you ask them कि भाई ये सीन बन रहा है, मैं क्या करूँ. चेंज करें या ना करें उसको. Exactly. Yeah. So this is one thing that I have many clients की जो reach out करते हैं, जिनकी Correct. pre approval हमने करके रखी होती है ना. They call, they are like, Archana ji, I have a better opportunity, and we try to understand what they were doing before. There is a filtration process. We do that, and then we help them understand whether it's the right move or no. Or not. Yeah. So that sustainability in the job is also very important. If you are on That's that, अगर मैं 3 साल से एक जॉब में हूँ तो मुझे उसका अगर मॉर्गेज के लिए जाता हूँ, it's easy process rather than कि every 6 months I'm moving. Yes, that's correct. Yeah. And again, like New to Canada, they have a very good program. There are several options for New to Canada to get approved for as a first-time home buyer. But this is something, again, as I said, like you need to start your journey even though you are not ready to purchase right away, because that is the time where we exercise what is required on your file to help you to get approved. अर्चना जी, अगर हम बात करते हैं फिक्स और वेरिएबल मॉर्गेज के जो रेट्स होते हैं, फिक्स और वेरिएबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? Okay, so as the term says, variable, it varies. It rides based on market. It rides based on bond yield. ठीक है. और जो फिक्स रेट होती है वो फिक्स होती है. लाइक फॉर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स से हमने 3 साल के लिए साइन अप किया है, लेट्स से हमने 5 साल के लिए साइन अप किया है, देन दैट अमाउंट इज गोइंग टू स्टे फिक्स. तो आपकी जो मंथली पेमेंट होगी, वो मंथली पेमेंट भी दैट सेट. लेट्स से 3000 इज योर मंथली पेमेंट, दैट सेट फॉर दैट एक्स अमाउंट ऑफ इयर्स. ओके. वर्सेस द वेरिएबल, उसमें अगर लेट्स से कि वेरिएबल रेट डाउन जा रहे, बेस रेट डाउन जा रहे, तो मॉर्गेज कम हो जाएगी. हाँ, तो मींस अमाउंट कम हो जाएगा जो हमने प्रोसेस किया टू बाई वीकली या मंथली. Yes, but there is again there is two types of product. One is called variable, one is called adjustable. एडजस्टेबल. तो एक जो है वो एडजस्ट होती है ओके. पेमेंट, और ठीक है. एक जो है वो फिक्स अमाउंट फिक्स ही रहेगा. बट देन जो बिकॉज वो रेट, लेट्स से कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि रेट लोअर गए, क्योंकि अभी का जी, ट्रेंड जी. है कि थोड़े से लोअर जा रहे रेट है ना, तो फिर आपके वो प्रिंसिपल में अमाउंट ज्यादा इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी और Okay. इंटरेस्ट में कम हो जाएगी. करेक्ट. सो यू आर पेइंग मोर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज गेटिंग लेसर, क्योंकि प्रिंसिपल अगर पे ज्यादा करेंगे इंटरेस्ट कम ही देना पड़ेगा. हाँ जी. ठीक है. तो व्हाट डू यू सजेस्ट योर क्लाइंट्स की मॉर्गेज वेरिएबल ने या फिक्स ने, व्हाट इज दैट थिंग? Okay. Again, this is a very tricky question in these days. I would say it's on their pockets. Okay, their budget. Let's say their budgets. Yes. Let's say, let me elaborate a little bit here. Variable. तो हमें पता है कि वेरिएबल अभी डाउन जा रहा है ना, जी. और वी हैव साइंस की अभी और भी future नीचे में जाएगा. और भी नीचे जाना है.
group of people, they believe कि it's okay for me कि मैं $100, 150 extra pay, not extra, I would call it कि जो because की rate अभी temporarily जो high है उसकी वजह से जो मुझे वो additional pay करना पड़ेगा, I'm okay to pay with that, है ना? तो फिर वो variable sign up करते, ठीक है। and जो जिनको ऐसा है कि मुझे वो झंझट नहीं चाहिए बेसिकली, मुझे बेसिकली वही अमाउंट चाहिए कि मंथली जा रहा है। आई लाइक टू हैव माई पीस जी जी। एंड आई एम गुड विद साइनिंग अप 3 years या फिर 5 years, then they just simply sign up for 3 years, 5 years, and they can focus on their enhancement and their growth and everything. Yeah, so that's how I see it. So I still have clients 50-50. Half of them they like Go to for variable and some for fixed. And yes, but the one thing that I like to mention here, जब बंदा वेरिएबल में रहता है ना, तो अगर कोई भी रीजन से इफ दे रिक्वायर टू ब्रेक द मॉर्गेज, देन पेनल्टी नहीं लगती है इतनी जितनी फिक्स में लगती है। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर हियर जब आप वेरिएबल या फिक्स चूज करते हो कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इन द अपकमिंग ईयर्स दैट यू माइट हैव डिफरेंट प्लान. You might consider moving out of province, yes, or something, anything based on your profession and all that, family requirement and all. तो तभी बहुत लोग variable choose करते कि they don't want that headache. अगर कभी भी move होना पड़ जाए business लेके या फिर people who are entrepreneur, they yeah, then that they can sell their property and give the money to whatever the rest to the mortgage. 3 months interest differential penalty, that's it. ओके, Yeah. और अगर फिक्स हो तो? Fix, okay, I think I criss-cross it. 3 months. 3 months I think penalty is for the जो fixed है वो. penalty है वो वेरिएबल के लिए. और फिक्स के लिए penalty calculation is very different. Okay, Yeah. that's a big amount than this. That's a big, definitely. It's almost double तो होगा ही कम से कम, अगर 3 महीने तो उसका 6 months होगा, more than that भी हो सकता है. More than that, yeah. And because it takes interest rate differential, that's why the wording is interest rate differential. कि what interest rate they have signed up versus what is the most current rate in that time कि जब वो interest जब वो break करना चाहते हैं mortgage अपनी. Perfect. Yeah. एक और चीज़ थी इसी मॉर्गेज की, अगर हम बात करें मॉर्गेज में मैंने कुछ ब्रोकर से भी बात होती है, व्हेन वी यूजुअली गो फॉर दैट, दे सेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज. वन इज मंथली, another is bi-weekly, then there is a weekly. So what do you suggest, which is a best one according to the pocket of the person, if someone is ready to pay a weekly or bi-weekly or monthly, तो उसमें तीनों में differentiate क्या है और benefits क्या हैं इसके? See, bi-weekly is always my recommendation. The simple math is monthly जब करेंगे साल के हम 12 payments कर पाएंगे, right? And जब हम bi-weekly करेंगे तो 26 कर पाएंगे. हाँ, तो फिर वीकली में 52 हो गई. तो फिर यस वीकली में 52 हो गई. बाई वीकली समटाइम्स इट्स टू मच फॉर पीपल कि हर हफ्ते में वो पेमेंट. नहीं वो मैं ठीक है. समटाइम इफ पीपल आर हैविंग अ गुड मनी, उनको होता है कि यस आई हैव अ better things, I have planned, like people in permanent jobs, like in health services की बात करें, health industry में है लोग, या कुछ ऐसी professional सिटी जॉब्स में है, उनको पता है कि येस आई एम रिटायरिंग ऑन दिस एज एंड आई एम गेटिंग दिस जॉब, मेरे परमानेंट लाइन है एंड आई कैन मेक दिस वीकली जस्ट टू गेट प्रिंसिपल डाउन एंड मेक इट फास्ट. इज इट हैपन और नॉट? इन अ वे यस. मेनली तो ये है कि वाई पीपल चूज दिस साइकिल अर्ली इज कि जब वो वेरिएबल में होते हैं तब उनको बेनिफिट है. क्योंकि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है. यस. So that's where the calculation is. Okay. That's where the bigger picture is. Fix में उसका कोई benefit नहीं है अगर आप weekly जाते हैं तो. Yeah, fix में compounding cycle is different compared to variable की cycle. तो variable में let's say कि आज rate decrease हो गए और मेरी अभी payment हो रही है next week को, then it will get affected with the lower rate. Okay. तो ये मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की वाली बात होगी, आप ये कह सकते हैं. वेरिएबल का मतलब होगा हाँ इन बिटवीन बेनिफिट्स, बट व्हेन वी लुक एट द बिगर पिक्चर, बिकॉज हाउ मच वी ओ इज द बिग अमाउंट, एंड दैट्स वेयर द कंपाउंडिंग इज हैपनिंग, एंड दैट्स वेयर द मेजर बेनिफिट दैट वी गेट टू सी. इसमें ऐसा नहीं होता अर्चना जी, जैसे अगर किसी ने एक मंथली चूज किया, मंथली वर्सेस वीकली, एक ने मंथली चूज की है पेमेंट और एक ने वीकली की है, दोनों वेरिएबल केस हैं. लेट्स टेक इन दैट एग्जांपल.
तो उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट को फास्टेस्ट पे कौन कर रहा है? वीकली वाला। वीकली वाला। तो वीकली का जो अगर सपोज 300,000 की मॉर्गेज है फॉर मंथली वाले के लिए और वीकली वाले के लिए, वीकली वाला उसको 18 ईयर में करता है इंस्टेड ऑफ जो मंथली वाला उसको 20 या 22 ईयर्स में करता है। इन दैट केस हु इज द बेनिफिशियल? अमोर्टाइजेशन तो वीकली वाले का कम होना है ना। जी जी। So तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम देना पड़ेगा बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट उसका डिक्रीज जल्दी हो रहा है। दैट्स वेयर द मेजर बेनिफिट इज, क्योंकि वो अमोर्टाइजेशन कम कर दिया वो बंदे ने। करेक्ट। राइट। तो या दिस इज इन केस ऑफ अगर सेकंड हाउस आप ले रहे हैं। फर्स्ट होम बायर तो पहले मंथली अपना बजट लेके चलते हैं, विच अर्चना जी सजेस्टेड फॉर दैट। 70% क्लाइंट्स जो है वो पहले एक बजट लेके चलते हैं कि यार फिक्स मेरा हो जाए, 5 साल का हो गया और मेरा मंथली ये जा रहा है, तो यू कैन मेक योर बजट। व्हेन यू आर गेटिंग मोर मनी आफ्टर 2-3 years यू कैन जंप इनटू वेरिएबल आल्सो और नॉट। यस या दैट्स करेक्ट। बिगिनिंग में ना, दिस इज अगेन माय रिकमेंडेशन कि बिगिनिंग में, बिकॉज कि वी आर डीलिंग विथ सो मेनी थिंग्स, जॉब सिक्योर करनी है, दैट्स स्टेप 1। वो जॉब, वी ऑल नो कि वो जॉब हमारी परमानेंट नहीं है। वी वांटेड टू अपग्रेड, वी वांटेड टू डू, और यू आर इन बिजनेस आल्सो, यू डोंट नो हाउ इट फ्लक्चुएट द थिंग्स। या वी वांटेड टू एनहांस इन आवर ओन फील्ड। तो वो सारी जो चीजें हैं, set that mortgage thing aside, and then that way we can focus on our goal. We can focus on कि अभी next 5 years में where I wanted to see myself. Correct. So that's where this doesn't come in the picture. क्योंकि see, end of the day, the way how I see, because and so, one person can lie but numbers cannot, right? True. So numbers जब मैं देखती हूँ, we don't see any huge difference than maybe 2-3 हज़ार एंड ऑफ दैट 5 years कि बंदे ने अगर फिक्स की है वर्सेस बंदा अगर वेरिएबल कर रहा है, या फिर कभी कभी वो रेट का भी हो रहा है ना। Correct. कि यहाँ से ये रेट मिल रहा है, वहाँ से वो रेट मिल रहा है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू एड वैल्यू। द True. वैल्यू विल बी व्हेन यू आर इन राइट हैंड। That's important. यस, बिकॉज दैट्स द वेल्थ। जब कभी कभी वो क्लाइंट से वेल्थ के लिए बात होती है ना, मैं दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट कि व्हाट डू यू कंसीडर वेल्थ। पैसे तो आज सबके पास है। True. वी ऑल आर मेकिंग। अगर हम अच्छे से सुबह से शाम तक का खाना खा सकते हैं और अच्छे से हम काम कर रहे हैं, हाथ पैर सही से चल रहे हैं, दैट मीन्स वी are आर wealthy. मेकिंग गुड, वी आर वेल्थी, वी आर मेकिंग गुड मनी। Yeah. व्हाट इज द एसेट? Correct. एसेट इज योर राइट कनेक्शन। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, वी गो टाइम टू टाइम चेक ऑन आवर हेल्थ द सेम वे। So same thing you are saying कि Yes. there's a wealth doctor is a mortgage broker, what we can say in an easy term. In a Your way, financial yes. advisor, your mortgage broker, because अगर हम बात करते हैं financial advisor के लोग जाने से घबराते हैं, हाँ जी। और mortgage broker अगर आपके पास है, they're not charging anything extra जब तक ये आपका काम नहीं कर देते। So you can consult with an appointment कि मुझे suppose मैं आपका client हूँ, मैंने एक घर लिया है, फिर second house लिया है, so when I have to discuss few things, I should ask you first instead of bank, because you know better things what bank is offering. I mean, that might sound a little bit competitive. Not competitive means you yeah. can give us, because कई बार होता है कि बैंक में हमें उतनी नॉलेज नहीं मिलती जितनी कि हमें Right. हाँ, वो जो फैमिली डॉक्टर देता है वो हॉस्पिटल में नहीं मिलता जाके। तो फैमिली डॉक्टर से यू कैन डिस्कस फ्यू थिंग्स। Eventually, if Very they good say you go point. to specialist, Yeah, then yeah. you can go to specialist. Yes, yes. That's my point to say. I'm not funding anyone here. Yes, no, all right? that's not what I Yeah, meant, because but you I- are also dealing with the banks. Ultimately, your working is with a bank. All right. Yes, My only thing is that it's taking an appointment with the bank people and sitting and them. Sometimes we don't have the time. Yes. And mortgage They brokers have a are bigger, they have a bigger portfolio to handle. So sometimes when any mortgage broker who is invested like 100% in this business, they can, I would say, they can definitely add more value because their whole time is for this business, this work, and all they do is assisting clients to deal in mortgages. So yeah. So सेम जैसे अर्चना ने बोला कि जैसे जनरल फिजिशियन होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती हैं या कुछ और चीज़ें जाते हैं, बिफोर यू रीच टू एनीवन, यू गो टू एनीवेयर यू वांट टू बाय अ होम, यू शुड talk to the mortgage broker and tell them these are the paper things what we need to be done, and they will let you know how things can be done easily. और आज जो हमने बात की है वो पूरा एक मॉर्गेज कैसे होती है और मॉर्गेज क्या लेना चाहिए उसके बारे में बात की है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में बात करेंगे अर्चना जी से
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऊपर जो फ्लक्चुएट होते हैं, या उनमें क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कैसे हमें हाइपर नहीं होना या हमें एक्साइटेड भी नहीं होना, उन चीज़ों के लिए आगे जरूर बातचीत होगी। जैसे अभी आने वाले कुछ 2-3 हफ्तों में शायद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे जाएंगे, देन विल इनवाइट हर अगेन टू कम एंड गिव अस ए ब्रॉड पिक्चर, पूरी ब्रॉड पिक्चर्स के बारे में एलेबरेट करेंगी और बताएंगी कि क्या हमें स्टेप अप आगे लेने चाहिए। तो आई थिंक अर्चना जी आज के लिए बहुत है ये। मेरे जो सुनने वाले दर्शक हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, एंड अर्चना पटेल, इनका नंबर हमने स्क्रीन पे दिया है। शी इज़ अ मॉर्गेज ब्रोकर एंड यू इफ़ यू वांट टू लुकिंग फॉर योर वेल्थ डॉक्टर फॉर योर होम, so you can approach her, and कोई question हो तो you can send us, and next time when she's coming so we can send her a question, and if you want to contact with her, her number is always there. Thank you so much, Archana ji. Thank you. Thank you very much. I truly appreciate this. Thank you so much.